Very good evening, viewers. You're watching an early edition of To The Point this evening. We come to you from pole-bound Madhya Pradesh, Chhindwara. But there's a huge political controversy which took place in Bihar, which is echoing even in the state of Madhya Pradesh. You have the Prime Minister today in Guna, and he did quote no one else but Nitish Kumar. What is it that the Bihar Chief Minister said that has resulted in this massive furor? Well, Nitish Kumar, the Bihar Chief Minister, gave a speech on the floor of the Vidhan Sabha, in which he used language which many thought was a little abrasive, was obscene to that level as well, where he seemed to be dispensing advice on population control. On Tuesday, Nitish Kumar sparked outrage while explaining in the State Assembly how an educated woman can contribute to population control. However, he laced that speech with what many said were unwanted explicit details. Facing widespread condemnation, the Bihar Chief Minister tabled an apology but asserted later that he was misquoted. But the outrage continues while the opposition staged a protest in the assembly. The BJP has condemned what they call vulgar thinking of a sitting chief minister. इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में सुतता है। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। But Nitish Kumar first making a speech which many thought was obscene. Lots of words were completely unneeded, where he was trying to make a speech on population control and how women play a huge role in that. Having said that, he's taken his words back, he's apologized, but it's not enough. What we've seen at the back of it is a huge political blowback, protests across the country, especially where the BJP cadre is concerned. It echoed right here where I'm reporting, which is the state of Madhya Pradesh. Early this afternoon, you have the Prime Minister in Guna, and he tore into the Bihar Chief Minister for insulting women. Listening. जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। All right.
what the Prime Minister said, echoing back in Madhya Pradesh, poll-bound MP. Let's cut across now to my colleague Rohit Singh, who's going to give us on what's playing out in the state of Bihar, and then we're going to cut across to Shazia Ilmi from the Bharatiya Janata Party, as well as Rajiv Ranjan from the JDU. But Rohit, will you encapsulate the entire controversy for us? What happened? Because we've heard parts of the speech, some of it you can't even air because, in terms of the language used, many would find it very obscene. Well, absolutely, Preeti. See, this is not the first time that Nitish Kumar has indulged into this kind of comments which are indecent, because he was talking about basically about birth control in Bihar, and he was also talking about how the education of women or girl child was important in bringing down the fertility rate. So in that context, when he was speaking both in the assembly and then later in the council, he spoke something which was really unparliamentary, you can say completely indecent, because several women MLAs and MLCs were also sitting and they were all listening to what the Chief Minister was telling, and also making those gestures with his hands. That was completely indecent, and that is why we are seeing that there is a massive ruckus that is being witnessed in the assembly. It was witnessed today throughout the day, the BJP not allowing the house to function. Nitish Kumar had to apologize 3 times today. First, he apologized for his comments outside the assembly when he came to the Bihar Vidhan Sabha. Later in the assembly, he apologized for his comments, condemning himself and also expressing regrets for his comments and telling that he was ashamed of his own comments. And later, third time in the council, he apologized for his comments. And Nitish Kumar 3 times in a day was apologetic for his comments, but the BJP is not amused. The BJP is not taking his apology and are demanding that he should quit from his post of the Chief Minister, as he has become, as his act has become unbecoming of the post of the Chief Minister, right, and completely are now tearing into the Chief Minister. And you saw that the entire drama, ruckus, was taking place right from Patna till the national capital in Delhi. There was massive furor over Bihar Chief Minister's indecent and vulgar comments. Right. Preeti. Well, Rohit, appreciate you joining us, not just from Patna to Delhi, but right here in Madhya Pradesh as well. You had the Prime Minister who invoked what Nitish Kumar said on the floor of the House, calling it not just derogatory, but an insult to women. I want to cut across to our political guest now. Rajiv Ranjan ji, आपसे शुरू करेंगे. इसमें आयरनी नहीं आ जाती है, राजीव रंजन जी? जेडीयू नीतीश कुमार को जो महिला का वोट था, सक्षम वोट मिला था, और उन्हीं से वो चीफ मिनिस्टर बने थे, क्योंकि इतना जो महिला का वोट बैंक उनको पावर में लेके आया था. ऐसी अभद्र भाषा क्या माफी काफी है? मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में लोगों को नीतीश कुमार जी से कुछ चीजें सीख भी लेनी चाहिए. अगर उन्हें ऐसा लगा कि उनसे अभद्रता हुई, उनके शब्दों से अगर लोग आहत हुए, तो एक दिन में 3 बार उन्होंने उन शब्दों के चयन के न केवल माफी मांगी, उन्होंने स्पीकर से कहा इन शब्दों को प्रोसीडिंग से निकाल दिया, और इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया. अब ये पूरा का पूरा प्रकरण क्या है, इस पर आपने काफी रोशनी डाल दी है. ये फर्टिलिटी रेट या बर्थ कंट्रोल, जो बिहार के जो आंकड़े सार्वजनिक हुए और उसमें जो साक्षरता को लेकर के पढ़ी लिखी महिलाओं के प्रतिशत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि निसंदेह फर्टिलिटी रेट को चेक करने में अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे, महिलाओं को एजुकेट करेंगे, तो उससे मदद मिलेगी, और ये आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं. अब उनमें शब्द फिसले, उन्होंने खुद महसूस किया, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की तरह नहीं है कि जिन्हें इस मिट्टी में जन्म लेने पर शर्म महसूस होती है. उन्होंने कभी भी उन शब्दों के चयन के लिए, मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसे शब्द कहे, उन्होंने कभी वापस नहीं लिए, न उन्होंने इन शब्दों के लिए कभी कोई माफी मांगी. और ये एक बड़ा सिलसिला है. भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे बदजुबान नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने समय समय पर इस देश की मिट्टी को आहत किया, यहाँ के सांप्रदायिक सद्भावना को आहत किया, अपने शब्दों से अनेक लोगों को उन्होंने न केवल परेशान किया, लोगों की आस्था को भी झकझोरा. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के उन नेताओं में से जो
शालीन वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। शायद जीवन में ऐसे अवसर नहीं आए होंगे जब उनके जुबान से कोई शब्द निकले, उन्होंने जो बातें की। थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगी, शाजिया इल्मी को भी लेके आऊंगी, पर जो आप कह रहे हैं कि बहुत शालीन है, इस वक्त तो ये चीजें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने एजुकेट करने के लिए किया, उन्होंने महिलाओं को एजुकेट नहीं, राजीव रंजन जी, एम्बैरस किया है। अब इसमें आप बताइए मिसकोट कहाँ हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मिसकोट हुए हैं वो। अब देखिए, मैं बस इतना कहूंगा, मैं मिसकोट या पूरा जो संदर्भ है वो आपने दोहरा दिया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, और मैं उन शब्दों को भी नहीं दोहराऊंगा जिसके कारण आपने कहा लोग एम्बैरेस हुए। मैंने ये कहा कि वो जो एक दस्तूर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बदजुबानी करते, कभी माफी नहीं मांगा उन्होंने, अपने शब्द वापस नहीं लिए। इससे उलट नीतीश कुमार जी को ऐसा लगा कि उनके शब्दों से अगर महिलाएं आहत हुई हैं, लोग आहत हुए हैं, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर विधानसभा के पटल पर, विधान परिषद में और पत्रकारों के साथ बातचीत में भी मैं शाजिया इल्मी को डिबेट में लाना चाहूंगी, राजीव रंजन जी, फिर आपके पास आती हूँ। शाजिया इल्मी, not one apology, 3 apologies have been given by none else but the Bihar Chief Minister. He said he's sorry. The remarks have been expunged. He's repeatedly apologized. Why is that not enough? No, Preeti, do you think anybody will find it enough that after the uproar and the furor created by his absolutely sexist, vulgar and disgusting words, which of course, he amplified with his gestures and crude gestures on the floor of the House, after the furor that has been created, there are so many people asking for him not just to apologize but to resign. And imagine this was said on the floor of the House with so many women members there. Even if they were not there, there were men there who were embarrassed and shocked. So this is about your Bihar CM, who is now being touted as a very Shaleen person. I mean, I am frankly speaking, I am shocked and disgusted by the language used. And the details to which he went, I think it's just outright, not just vulgar, but cringeworthy. Cringeworthy. And I also want to say this, it's just not his mentality about how he's describing basic sexual activity that because he wants to make a finer point. I get that. But what does he take people for? I mean, it is so, almost derogatory for his team members, for people who are listening into him, and for people of Bihar to whom he seems to give this kind of advice. And not just that, it was accompanied with gestures that he made, and he had no idea and no awareness. It was only later when the skies opened up in furor that he decided to do something about it and apologize, because he didn't have a choice. But the fact is something not all right with Nitish ji. Why would he say something like that? This is not how we remember Nitish ji. So I say his name with great respect because he has been a great leader. But I think he's clearly lost it. And this is something unforgivable. Never before in the history of this country, lots of things have been said. But the JD was turning around and saying, at least we are apologizing, not once, thrice over. There are comments that have been made by the BJP, many leaders, where comments like Jersey cow, 100 crore ki girlfriends have been used and never taken back. That's the charge, Shazia. No, that may be the charge. But the fact is, did Nitish Kumar really have a choice? And as for the comments made by different leaders of the BJP, is this a time for Rajiv ji to indulge in whataboutery? Surely this incident itself and what was said, is that not enough? Will we discuss every time women are embarrassed or there is something vulgar that is said by anybody? Is it going to be always about the other party? And no responsibility will rest fairly and squarely on the shoulders of the person who is spreading this kind of absolutely vulgar, analogies, who's making on the floor of the House? I don't understand. I mean, I expected this. I expected the RJD leaders today and JDU leaders, pardon me, and RJD leaders, both to come up with this whataboutery. And I want to say as a woman, forget being a member of a party, but what was the need? I mean, he was trying to drive home a fine point. But what he did on the floor of the House
was outright disgusting and cringeworthy. I mean, बहुत शर्म आई सुनकर मुझे, और बहुत ही अफसोस हुआ इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल, इस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल, किस तरह से उन्होंने बाकायदा जेस्चर्स करे हैं, और इस तरह से एक चीज को बताना चाह रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता को वो दर्शाता है, और बहुत ही अफसोसनाक और दुर्भाग्यपूर्ण एक वातावरण क्रिएट करता है। सोचिए जो महिलाएं रही होंगी उस वक्त फ्लोरल हाउस में, वो क्या सोच रही होंगी। So I just find it very, very shameful. Rajiv Ranjan ji, disconcerting at that. I would reckon most women today are finding it very disconcerting. Embarrassed, yes, but also questions that are being raised. Rajiv Ranjan ji, और वो सवाल यही है ना कि लोग तो बेवकूफ हैं, कुछ भी बोल दीजिए फ्लोर पे, एक्सपंज करा लीजिए। जेडीयू ने बोल दिया, जो नीतीश कुमार जी हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, एक्सपंज हो गया, 3 बार अपॉलॉजी दे दी, काफी है। पर आप अलग नहीं है ना, भाजपा में कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों पे कुछ भी बोल जाता है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें सबसे बड़े बेवकूफ तो लोग हैं ना। तो हम मान लें कि पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी हो, बेवकूफ हम ही बन रहे हैं जो लोग हैं यहाँ पे। देखिए प्रीति जी, वैसे मैं समझता हूँ आपने जिस सवाल पर मुझे बुलाया, मुझे उसी पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जिस तरीके का कोहराम दिख रहा है, शब्दों के चयन के लिए माफी मांगने के बाद, सदन की कार्यवाही से उन शब्दों को हटा लिए जाने के बाद, इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण का पटाक्षेप मान लिया जाना चाहिए था। लेकिन इन सवालों को जिंदा रखने की वजह क्या है? कल बिहार ने इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। रिजर्वेशन के नए फॉर्मूले और जातीय गणना, जातीय सर्वे के जो आंकड़े, ये 2 ऐसे चुभते सवाल हैं जिस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, और न इनके नेताओं के बदजुबानी। पार्लियामेंट में जो बात रमेश बिधूड़ी ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, साक्षी महाराज से लेकर के इनके तमाम नेताओं के अनेक ऐसे बयान हैं, उन बयानों पर किसी नेता ने आज तक माफी नहीं मांगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कम से कम राजीव रंजन जी, आप कह रहे हैं व्हाट अबाउटरी जी। राजीव रंजन जी, देखिए मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल करूंगी, फिर शाजिया पे जाऊंगी। देखिए अपने दिल पे हाथ रख के कहिए राजीव रंजन जी, आप एक सीनियर नेता हैं, हमेशा जो बात करते हैं मतलब इन्फॉर्म्ड बात करते हैं। दिल पे हाथ रख के कहिए और बताइए जो लोग हैं यहाँ पर, क्या जो भाषा नीतीश कुमार जी ने असेंबली में यूज की है वो अभद्र नहीं, एम्बैरेसिंग भी नहीं, बिल्कुल क्रूड और ऑब्सीन है। राजीव रंजन जी, आप कैसे नहीं मान रहे हैं सर? नहीं, किसने कहा कि नहीं मान रहे हैं? जब नीतीश कुमार जी ने मान लिया तो हमारी क्या दिशा? जिन्होंने ये शब्द कहे उन्होंने उन शब्दों पर शर्म महसूस किया, उन्होंने कहा वो माफी मांगते। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है प्रीति जी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर नेताओं की तरह होते जो बार बार इस तरह के बयान देते होते तो मेरी समझ में ये बात आती। लेकिन दिल पर अगर ये रख करके ये सवाल आप शाजिया इल्मी जी से पूछेंगी कि क्या उन्हें रमेश बिधूड़ी जी के बयान पर कोई अफसोस नहीं है? क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयानों पर कोई, जिसमें जर्सी गाय से लेकर के तमाम जो बातें उन्होंने कही उस पर कोई उन्हें अफसोस नहीं? तो ये पूछना बेहद आसान है। देखिए ये लेकिन इन सवालों का साधोई के साथ आप नहीं, राजीव रंजन जी, ये पर्याप्त है, पर उनको देखिए वहां पे कहेंगे वो पर्याप्त है जो एक्शन लिया। आपको क्या पता, आप दूसरे को देखिए। बस जो यहाँ पर जो सिटीजन है ना, वो आप लोगों के मुंह ही देखता रह जाता है। पर शाजिया इल्मी जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं बात केवल 30 सेकंड में कंक्लूड। I want to say मुझे कहना है, देखिए जो रिस्पॉन्ड करने जो रमेश बिधूरी जी ने कहा है, मैंने खुद, और ना सिर्फ मैंने, चाहे वो राजनाथ जी हो चाहे और लोग हो, हम लोगों ने इस पर बहुत ही अफसोस जताया है और इस पर कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है, आप लोग को लगता है ज्यादा होनी चाहिए, शायद इसमें कुछ आप लोग की राय सही हो सकती है, लेकिन कोई इसको सही नहीं मान रहा है। भाजपा के कई नेताओं ने बार बार कहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कल जो हुआ है, और वो बिहार असेंबली में
आप देखिए, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता है कि बाकायदा किस तरह से वो एक अच्छी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस बात की है, मुझे लगता नहीं कि वो मानसिक तौर से पूरी तरह से संतुलित है या कुछ इसमें कुछ मुझे बहुत ही तकलीफ है कि उसको अभी जस्टिफाई किया जा रहा है। अभी जो कुछ हमारे भाई राजीव जी कह रहे हैं, वो एक कवर अप के तौर पर कह रहे हैं और ये माफी भी एक कवर अप के तौर पर है, लेकिन इतनी डिटेल और तफसील से इस तरह के प्रकरण होना, बार-बार उसको रिपीट करना, उससे बाकायदा हाथों के जेस्चर्स को इस्तेमाल करना, भाषा को इस्तेमाल करना और कई वाक्य ऐसे बोलना, क्या दिखाता है आपको? और आपको क्या लगता है जो लोग सुन रहे हैं? क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये विधानसभा है, विधानसभा का पटल है, विधान परिषद है। आप क्या कर रहे हैं वहां पे? मुझे इस पर ताज्जुब है। देखिए, एक आध बयान आता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, बाकी लोग उसे जस्टिफाई करते हैं, ऐसा अमूमन होता है, लेकिन ये जो हुआ है, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे लगता है नीतीश जी की छवि को बहुत बड़ा से धक्का लगता है। और नीतीश जी, और ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने पहली ऐसी बात कही है, मैं भी पढ़ रही थी, ऐसे बयानात आए हैं, उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन वो उनको रिलेटिवली औरों के मुताबिक शालीन माना जाता है, लेकिन इस संदर्भ में जिन्होंने इंतहा पार कर दी है, वल्गैरिटी की, अश्लीलता की, अपने हरकतों द्वारा, अपने भाषा द्वारा, राजीव मुझे लगता है आसानी से आप मांग रहे थे, रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं शो क्लोज करूंगी सर। देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, ये बेहद सुविधाजनक है कि आपने रमेश बिजुड़ी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, न रमेश बिजुड़ी जी ने माफी मांगी, और प्रधानमंत्री जी के सवाल पर तो आप चुप। शाजिया जी, मैं आपकी काफी इज्जत करता हूँ और हम लोग कई अवसरों पर चलिए, हमारा ये कहना है, नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी कहा है, जनता को तय करने दीजिए, जनता तय करे। चलिए, you know, that's the sad part. I appreciate both our guests for joining us. The collateral in all of this is the citizen. The kind of language that Nitish Kumar used on the floor of the assembly, whatever the intent might have been, he might be looking to educate. It's done nothing else but deeply embarrass the women of this country. All the protests that are taking place are right. On the other hand, you've had someone who stood on the floor of the parliament, used derogatory, communally loaded language, and he's gotten away with it. So, in midst of whataboutery, in midst of, okay, we've taken action, now you look at your lot, the collateral is the citizen. Thank you for joining us.